بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت پسند شہزاد احمد کے ساتھ۔ میرے ساتھ مہمان پروفیسر مظہر دانش صاحب، آپ واقف ہیں ان سے۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا بے چینی کے اوپر۔ سر اس وقت ہم ایک اور ملک گیر مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہر پاکستانی جو کہ محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بیرون ملک کسی اچھے ملک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں وہ فیملی سمیت جانا بھی چاہتا ہے، اور اگر وہاں پہ اس کو سٹیزن شپ کی آفر ہوتی ہے تو وہ اسے بالکل بھی نہیں ٹھکرائے گا۔ صحیح ہے، وہ فوری طور پہ اسے ایکسیپٹ کرے گا۔ ایون کہ ہم نے، آپ اگر اس بات کو اس طرح بھی دیکھیں کہ ملک کا جو دماغ ہے نا وہ تقریباً باہر جا چکا ہے، اور جو باقی ہے وہ بھی اسی پلان میں ہے کہ میں نے چلے جانا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اندر کیوں ہے یہ مسئلہ، اور اس مسئلے کے بارے میں حکومت نے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں نہ سوچیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ اچھا، ایک انسانی فطرت ہے، اللہ نے انسان کو چونکہ عقل و شعور دیا ہے۔ جی بالکل۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہے یا آپ کے پاس کوئی چیز ہے، جی جی، آپ اس کو کہاں پہ بیچنا پسند کریں گے؟ جہاں پہ اس کے اچھے دام ملے یا یہاں پہ کوئی قدردان نہ ہو؟ ظاہر ہے عقل تو یہی کہتی ہے کہ کہیں اچھی جگہ پہ اچھی جگہ پہ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے جی جی، یہ عدم استحکام میں یہ اس طرح سے مستحکم نہیں ہو سکا جس طرح سے اس کو سوچ کے بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں لوگ جو لٹے پٹے یہاں پہ پہنچے ہجرت کر کے، وہ ایک جنت کا خیال لے کے یہاں پہ آئے تھے۔ انسانوں نے ہجرت تو کی نا، یہ دوسری بڑی ہجرت ہے اور انسانی تاریخ کی شاید بڑی ہجرت ہے یہ، جو ہندوستان کی جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا اور ہندوستان اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے ایک جنت کی تلاش میں آئے۔ لیکن افسوس یہ کہ وہ جو خیال لے کے وہاں سے نکلے تھے وہ یہاں پہ پورا نہیں ہوا، ان کا خواب پورا نہیں ہوا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس سکل ہے لیکن اس کا یہاں پہ قدردانی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ آتا ہے اور کچھ سال گزارتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری تو زندگی ایسے فضول میں جا رہی ہے، تو میں کیوں نہ اس بہتر جگہ پہ جاؤں جہاں پہ میری جو سکل ہے، میرے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کی قدر و قیمت ہو۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ چونکہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے تو وہ ہجرت کرتا ہے، اور انسانی تاریخ ہجرت سے ہی عبارت ہے۔ اگر انسان ہجرت نہ کرتا تو اس وقت پوری دنیا پہ انسان جو ہے وہ آباد نہ ہوتے۔ ایک تو یہ بنیادی مسئلہ ہے ہجرت کا۔ دوسری بات آپ نے کی جی ہمارا دماغ جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے، مطلب وہ جا رہا ہے جہاں سے، اور باقی ہم سب بھیڑ بکریاں رہ جائیں گے، اعلیٰ دماغ تو چلے جائیں گے ترقی یافتہ ممالک میں۔ اس میں میرا کہنے کا مطلب تھا ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنٹسٹ، اکنامکلی جو لوگ بہتر ہیں، جی جی، وہ ان کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر جاب کریں، وہاں کا حصہ بنیں۔ ہاں جی بالکل شہزاد بھائی، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے۔ اچھا، ہاں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جاپان میں میرا ایک وقت گزرا وہاں یونیورسٹی میں، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اچھا، ان کے بھی جو اعلیٰ دماغ ہیں وہ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں، اور دنیا کے تمام ممالک جو ہیں ان کے جو اعلیٰ دماغ ہیں وہ سب کے سب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی بھی بڑی چیز ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے یا کوئی بھی بڑا ایک انقلاب آتا ہے تو وہ کہاں سے اٹھتا ہے؟ امریکہ سے اٹھتا ہے۔ سارے دماغ انہوں نے وہاں پہ وہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ آپ نے یہ ایک دیکھا ہوگا، وہ نمبر سسٹم کے اتنے پوائنٹس آپ کے اگر جمع ہو جائیں، میٹرک کے اتنے ہیں، انٹر کے اتنے ہیں، بی اے کے اتنے ہیں، ایم اے کے اتنے ہیں، اور پی ایچ ڈی کے اتنے ہیں، اگر آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو ویلکم رہتے ہیں۔ دیکھیں جتنے صحت مند دماغ تھے وہ چونکہ زیرت قوم ہے، ہم ہیں جھلے لوگ بنیادی طور پہ، وہ زیرت لوگ ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ یہ امریکہ آپ کے لیے یہاں پہ فریڈم ہے، ہم آئے، آپ اپنی یہاں پہ سروسز دیں، ہم آپ کی سروسز کے مطابق آپ کو انٹرٹین کریں گے، اور انہوں نے کیا، اسی لیے تو لوگ گئے وہاں پہ۔ اچھا، مین کشش پیسہ ہے؟ مین کشش پیسہ نہیں ہے، مین کشش آپ کی قدردانی ہے۔ اچھا، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو وہ چکا چوند چھوڑ کے جہاں پہ آئے ہیں اور بڑے مسائل پہ رہے، وہ اصل میں محب وطن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم آگے بڑھیں، لیکن پیسے بھی سے بھی زیادہ
जो है वो इंसान को उसकी इज्जत और उसकी जान ये बहुत प्यारी होती है। इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा लगा देता है और अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ वो दांव पे लगा देता है। जब उसकी यहाँ पे कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो फिर आप उस मुल्क की तरफ जाएंगे जहाँ पे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिले, और डिग्निटी की खातिर निकल जाते हैं। डिग्निटी की खातिर वो निकल जाते हैं। अच्छा, इसमें ना दो सवाल पैदा होते हैं। जी जी। एक तो ये कि इन लोगों की कदर यहाँ पे नहीं की जाती, उसमें अवाम का कितना हाथ है और उसमें सियासतदानों का कितना हाथ है। एक सवाल तो ये पैदा हो गया। सही है। दूसरा सवाल इसमें ये आता है कि ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अगर ये पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो ये वैसे काम नहीं करते जैसे वो वहां पे करते हैं। वहां पे करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। सही आप देख लें जितने लोग यहाँ पे हैं वो पैसा तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले जो सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, जी जी, वो कैसी दे रहे हैं? मतलब कोई बंदा आपको लग रहा है कि कोई बंदा इनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई है? हाँ जी। बड़ी मजबूरी में बंदा जब जाना चाहता है तो बड़ी बेदिली से जाता है। ठीक है। आपने कभी हॉस्पिटल का रुख किया? आप सिविल हॉस्पिटल में गए होंगे, हम अपने शहर की बात करते हैं। जी जी। वहां पे किस कदर रश होता है? एक डॉक्टर दिन में कितने मरीज चेक करता है? मतलब मेरे ख्याल में सैकड़ों करता है, 10-20 नहीं करता, 100-150-200 मरीज वो चेक करता है वो अपनी ड्यूटी के दौरान में। और इस दौरान में उसके ऊपर भी एक इंसानों का झुरमट होता है। 8-10 अंदर गए होते हैं, 10-20 बाहर खड़े होते हैं, लाइन लगी हुई है और वो बेचारा चेक किए जा रहे हैं। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो हालात बता रहा हूं। और जब वो पूरा दिन, इतनी मुशक्कत है ये कि आपने इंसानों को ट्रीट करना है, उनकी सेहत का मसला है और मुशक्कत वाला काम है। आप जब पूरा दिन इस तरह से गुजारते हैं और एंड पे आपको क्या मिलता है? मेरे ख्याल में वाह से ज्यादा, शाबाश से ज्यादा गालियां मिलती हैं आपको, क्योंकि आप ऐसा काम कर नहीं पाते। देखिए, अगर एक डॉक्टर ने, ये तयशुदा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और इतने ज्यादा हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं और फैसिलिटीज हैं कि एक डॉक्टर जो है वो 20 मरीज चेक करेगा तो उसका रवैया वैसा नहीं रहेगा जैसा आप है। ये ज्यादातर वर्कलोड की वजह से होता है और हमारे यहाँ डॉक्टर्स के ऊपर बहुत वर्कलोड है, बहुत कमी है हमारे यहाँ। इसी तरह असातिज़ा को भी देख ले, इसी तरह असातिज़ा की भी कमी है, इसी तरह डॉक्टर्स की कमी है और उन पे वर्कलोड ज्यादा है और मुआशरे की तनकीद का निशाना ज्यादा बनते हैं। इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि मेरे ऐसे जगह को छोड़ दिया जाए। ये तो बड़े कम लोग हैं जो सही मुहिब्बे वतन है, वो कहते हैं गालियां पड़ती हैं तो पढ़ने दे। जो ये कहते हैं, ये मेरे लोग हैं जो कहते हैं कहने दे मैं 12 लाख अपनी सर्विसेज दूंगा, ये बहुत कम लोग होते हैं। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और वो वहां यहाँ से चले जाते हैं अपने मुल्क से। अच्छा, इसमें प्रोफेसर साहब अगर तो इस बहस में जाया जाए ना जी, तो काफी ज्यादा सवालात, काफी ज्यादा दलाइल, एक अंबार खड़ा हो जाता है। इसमें मैं इस गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहूंगा। आपका हुस्न ज़न कि आप चीजों को जरा पॉजिटिव देख रहे हैं और उनकी पॉजिटिव साइड को बयान कर रहे हैं। देखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जरूरत जो है ना, अगर वो पूरी नहीं हो रही, अगर जरूरत पूरी नहीं हो रही तो उस पर तनकीद लाजम है। ये जरूरी बात है। लेकिन अगर हम तनकीद करते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जितनी हम लोग तनकीद करते हैं, अगर हम उनको उतना ही अप्रिशिएट कर दें तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनका हौसला भी बढ़ जाएगा और उनकी इस्तेदाद कार भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दूसरे सवाल का शॉर्ट आंसर दीजिएगा जो मैंने पहले किया कि अब ये जो तबका बाहर जाने के लिए बेचैन है, जी जी, वो एक तबका नहीं है, वो मखसूस तबका नहीं है। बिल्कुल, वो किसी को भी मौका मिले ना, भी हाथ पर वो जाएगा और जब तक नहीं जाता तब तक वो मुहिब्बे वतनी का राग अलापेगा यहाँ बैठ। सही है, ठीक है। अब ये जो बन रहा है, ये बन चुका है, मेंटेलिटी बन चुकी है, इसमें ज्यादा हाथ किसका है? हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, जो मौजूदा है, इनका है, हमारी पॉलिसीज बनाने वालों का है, या फिर अवाम का इसमें कितना किरदार है? आप ये देखिए, एक घर की मिसाल ले लीजिए, छोटा सा यूनिट है। जी जी। उस घर में अगर मसाइल पैदा होते हैं, गड़बड़ होती है, एक भाई इधर को भाग रहा है, दूसरा उधर को भाग रहा है, तो आपके ख्याल में किसकी गलती होगी? यकीनन उस घर का सरबराह जो है वो कमजोर है, ऐसे वो मैनेज नहीं कर पा रहा घर को और अफराद को। देखिए, शुरू से ही हमारे यहाँ क़यादत का बहुत फुकदान रहा है। एक अच्छा लीडर मिल जाए ना अगर किसी कौम को, तो मैं दावे से कहता हूं कि भेड़ों का अगर लीडर शेर हो तो वो भेड़ें भी शेर हो जाती हैं, और अगर शेरों का लीडर वो कोई भेड़ हो तो वो शेर भी भेड़ें बन जाती हैं। लीडरशिप जो है दुनिया में, जो भी कौमें ऊपर गई हैं, आप उनको देखें, उनको लीडर मिला। यहाँ मैं आपको एक बार रोकूंगा। जी, इतनी मुशक्कतों के बाद, इतनी तकलीफों के बाद एक कौम मुल्क हासिल करती है। जी जी, ठीक है ना। शुरू में आपने कहा था कि एक जन्नत नजीर मुल्क की अब उस कौम को मौका मिला कि वो अपने लीडर्स जो हैं उनको चुने। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो चुनती किनको है?
शुरू से लेकर एंड तक ये जी जुल्म सहना हमने कहाँ से सीखा? शुरू से हम जुल्म सहते आ रहे ये हैं, इस खित्ते की तारीख है गुलामी की, तो फिर हम वो अभी तक वो जारी सारी है। एक पूरी तारीख है। और हमने चुना किनको? हाँ। शुरू से, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पहले दिन से कर रहा हूँ। हाँ। कायदे आज़म के बाद जब हमने पहला चुनाव हुआ तो हमने चुना, तो गलती किसकी हुई? अवाम की। आप कहते हैं कि अवाम की हुई ना, आप कहते हैं, अभी मैं इस पे बात करूंगा। ये देखिए, एक तो ये है, एक बात इसीलिए तो कहते हैं कि गुलामी जो है ना, ये इंसान के अंदर से जो कुव्वत फैसला है वो छीन लेती है और इंसान की अपनी सोच छीन लेती है। तो गुलामी खत्म करने के लिए ये मुल्क नहीं हासिल किया गया? ये हासिल हुआ था, लेकिन गुलामी कोई लम्हों में नहीं खत्म होती, ये बात याद रखिएगा। ये बिल्कुल बतदरीज खत्म होगी। देखिए, मैं उस्ताद हूं, अगर मैं इस नीयत के साथ जाता हूं अपनी क्लास के अंदर कि ये जो बच्चे अमानतन मुझे दिए गए हैं और क्लासरूम के अंदर हैं और मैंने इनकी ज़हन साजी करनी है और इनके अंदर से वो चीज़ें निकालनी है, मैं सारी जिंदगी लगा रहा हूँ। मेरी जिंदगी है कितनी है? एक आदमी की जिंदगी होती कितनी है? अगर उस जिंदगी की मैं 10-20 चिराग अगर जला के चला जाता हूँ तो मेरे ख्याल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक नस्ल जो है गुजरते गुजरते तब्दीली आ जाएगी। और हाँ, ये तब्दीली, इसमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जो चाइनी कहावत है कि एक बड़े मियाँ थे, उन्होंने कुदाल पकड़ा हुआ है और पहाड़ी को वो खोद रहे हैं। एक पहाड़ी है जो उनके गांव के साथ है और गांव उसके दामन में है, उसको खोद रहे हैं। कोई आदमी पास से गुजरा, उसने कहा कि बड़े भैया क्या कर रहे हो? कहने लगे कि चूंकि मेरे गांव में धूप नहीं आती इस पहाड़ी की वजह से और हवा भी रोकती है ये, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, रास्ता बना रहा हूँ ताकि यहाँ से रोशनी और हवा जो है वो मेरे गांव में आ जाए। वो हंस पड़ा, उसने कहा बड़े मियाँ इस कुदाल के साथ और इस उम्र में ये काम तो नहीं होने वाला। तो बड़े मियाँ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा हाँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरी ना तो जिंदगी में होने वाला है और ना ही इस कुदाल के साथ होने वाला है, लेकिन मुझे एक चीज का इल्म है कि मैं सारी जिंदगी जो मेरी बकिया है इसको हटाता रहूंगा थोड़ा थोड़ा करके। जब मैं मरने लगूंगा ना, यही कुदाल मैं अपने बच्चों को दे जाऊंगा, वो हटाना शुरू कर देंगे, जिंदगी भर हटाते रहेंगे और फिर जब उनका वक्त करीब आएगा वो अपने बच्चों को दे जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरी 6-7 नस्लें गुजरने तक ये पहाड़ी भी अपनी जगह से हट जाएगी और मेरे गाँव में धूप और रोशनी आ जाएगी। अगर तो आप ये चाहते हैं, और मैं बिल्कुल मायूस होना और बिलखुसूस किसी उस्ताद का मायूस होना उसको गुनाह कबीरा समझता हूँ, क्योंकि अगर उस्ताद हो गया मायूस या कोई सरबराह मायूस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी अवाम तो मायूस होते हुए देर नहीं लगाती। आपने हमेशा, हमारे यहाँ क्या है, हम मीडिया में क्या है, दिन रात हम तबाही की बातें करते हैं, मर गए और कुछ नहीं होने वाला और ये हो गया और वो हो गया। और भाई इनको यकीन दीजिए, इनको हौसला दीजिए, चश्मे यहीं से फूटेंगे और इन्हीं की मेहनत से और इंशाअल्लाह इन्हीं के यकीन से एक दिन वो सूरज जरूर तुलू होगा जब हम तरक्की याफ्ता कौमों के दरमियान में खड़े होंगे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अगर इसको बहस में लेकर जाया जाए तो बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन चूंकि प्रोग्राम हम एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाते हैं तो चलें इस मौजू को किसी और वक्त में डिस्कस कर लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपके कीमती वक्त का। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद अगर आपके जहन में कोई टॉपिक हो, कोई सवाल करना चाहें प्रोफेसर साहब से तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें हमें हमारे चैनल का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इंशाल्लाह नई किस्त में दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।